A very good morning to all of you. Today I am going to discuss elevation in boiling point. Now, elevation of boiling points. So, boiling means what? Liquid into vapor phase. So, the boiling point is defined as the temperature at which the vapor pressure of any liquid becomes equal to atmospheric pressure. ठीक है. So, boiling point वो टेम्परेचर होता है जिसपे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो? लिक्विड से कहाँ में जाएगा? वेपर में जाएगा, मतलब वेपर फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो वह टेम्परेचर जिसपे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके वेपर फेज के वेपर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो तो उसको बोलते हैं बॉइलिंग. ठीक है. अब हमें दो पॉइंट है. फर्स्ट, इट इज वेल नोन फैक्ट दैट देयर इज ऑलवेज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ऑन एडिंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन प्योर सॉल्वेंट. ठीक है. दैट इज राउंड लॉ ऑफ ग्रेडिंग लोअरिंग वेपर प्रेशर. ठीक है. सो किसी भी प्योर सॉल्वेंट में अगर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो उसका वेपर प्रेशर पहले से कम होगा. ठीक है. अब जब वेपर प्रेशर पहले से कम होगा तो ऑब्वियसली उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ले जाने के लिए पहले से ज्यादा टेम्परेचर देना होगा. ठीक है. सो सेकेंड, हैंस द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन इट्स वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर will be higher than the temperature of pure solvent. That is, in other words, the boiling point of solvent is elevated by the addition of non-volatile solid. ठीक है. सो किसी प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड डालेंगे तो उसका वेपर प्रेशर पहले से कम होगा. अब इस घटे हुए वेपर प्रेशर को हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लाना है तो पहले से ज्यादा टेम्परेचर देना होगा. ठीक है. मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट पहले से ज्यादा हो जाएगा. ठीक है. So the difference in boiling point of solution and the boiling point of pure solvent is known as elevation of boiling point. तो जितना टेम्परेचर डिफरेंस आएगा सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट के बीच में उसी को बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. सो किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो उसका वेपर प्रेशर घटेगा. ठीक है. और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा. So the graph of vapor pressure against temperature for a pure solvent and two solutions of different concentrations is shown in figure. तो देखिए यहाँ पे क्या प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता गया जिस टेम्परेचर पे बराबर हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के उसको बोलते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट. तो T0 फॉर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कमती हो गया सॉल्वेंट से तो ग्राफ नीचे आया. इसका भी वेपर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा जिस टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ दैट इज पॉइंट P, उसको बोलते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट. तो T1 फॉर बॉइलिंग पॉइंट, T1 इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 1 and T2 is the boiling point of solution 2. Now, assuming that the solutions are very dilute, these curves may be approximately taken as straight lines near the boiling point. Thus, the triangle ACE, this triangle, and triangle ABD are similar triangles. So, using the property of similar triangles, we can write AC by AB equal to AE by AD. AC is what? AC represents AC. AC is what? T2 minus T0. So T2 minus T0. AB is what? AB. T1 minus T0. Similarly, A is what? AE. P0. This point is A, that is P0. And this point is E, that is P2. So P0 minus P2. AD is P0 minus P1. T2 minus T1 is delta T2. And T1 minus T0 is delta T1. This is delta P2 and this is delta P1. So we can say that delta TB is proportional to delta P. मतलब elevation in boiling point is proportional to lowering in vapor pressure. Vapor pressure जितना कम होगा boiling point उतना ही ज़्यादा होगा. ठीक है. Now from Raoult's law of dilute solution, so relative lowering in vapor pressure equal to mole fraction of solute. So P0S minus PS, that is delta P, can be written as molality into P0 मतलब pure solvent का vapor pressure. For the pure solvent P0S, its vapor pressure at the boiling point, and Ma, its molecular mass, are constant. So therefore, delta P or P0S minus PS is directly proportional to mass of solute divided by molar mass of solute into mass of solvent. So from this and from delta TB is directly proportional to delta P. So इन दोनों को combine कर दे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा कि delta TB is proportional to WB, मतलब mass of solute divided by molar mass of solute into mass of solvent. इस साइन को उठाएंगे तो कांस्टेंट आएगा जिसको बोलते हैं K, where K is constant called elevation constant. ठीक है. So here WA represents the weight of solvent in kg.
Now अब यहाँ से 3 cases यहाँ पे first case when WB by MB is 1, that is 1 mole of solute is dissolved in 1 gram of solvent, then delta TB equal to what? K. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से देखिए ये इसकी वैल्यू WB divided by MB मतलब 1 mole it dissolved in 1 gram, तो 1 by 1 that is 1, so delta TB equal to what? K. So इसको delta TB equal to K. Second case when WB by MB that is 1 mole of solute is dissolved in 100 gram of solvent. So then delta TB equal to K divided by 100, that is K dash. So this K dash is known as molecular elevation constant. Okay. It is defined as the elevation in boiling point produced when 1 mole of solute is dissolved in 100 gram of solvent. So 100 gram of solvent में 1 mole solute डालें तो जितना उसका boiling point बढ़ेगा तो उसको बोलते हैं molecular elevation constant. Third case when WB by MB equal to 1, that is number of moles of solute is 1 dissolved in 1000 gram or 1 kg of solvent. So then delta TB equal to K divided by 1000, that is known as KB. तो इसको बोलते हैं where KB is called molar elevation constant. So molar elevation constant is defined as the elevation in boiling point produced when 1 mole of solute is dissolved in 1 kg or 1000 gram of the solvent. ठीक है, सो जैसे कुछ आपने 1000 ग्राम दैट इज 1 kg वाटर लिया, उसमें 1 मोल सोडियम क्लोराइड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, थर्मामीटर लगाया, जितना टेम्परेचर 100 से ऊपर जाएगा दैट इज नोन एज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर प्योर वाटर. Thus, so K इक्वल टू 1000 इंटू केवी फॉर्मूले में डाल दीजिए, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू 1000 केवी WB डिवाइडेड बाई MB इंटू WA. Now this term is known as what? Molality. So we can write delta TB equal to molality into KB. ये हमारा फॉर्मूला हो गया न्यूमेरिकल के लिए. ठीक है. Thus the elevation in boiling point of a solution of non-volatile solute is proportional to its molality, and equimolar solution of all the substances in the same solvent will show equal elevation in boiling point. These are known as Raoult's law of elevation of boiling point. ठीक है, मतलब अगर मोलैलिटी सॉल्यूशन की सेम है किसी सेम सॉल्वेंट के लिए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी सेम आएगा. The elevation in boiling point will also be written as, just for sake of simplicity, so delta TB equal to 1000 kb, small w, small m and capital W. Small w represents the mass of solute dissolved in, capital W mass of solvent, small m is the mole molecular mass या molar mass of solute, kb is the molar elevation constant of solvent, delta TB is elevation in boiling point. The molar elevation constant can also be written as Kb equal to RTB square divided by 1000 into LV, where LV is the latent heat of vaporization, joule per gram, TB is the boiling point of solvent. ठीक है. Now, for better understanding, let us calculate some numericals. For example 1, a solution of 2.5 gram of non-volatile solid in 100 gram benzene is boiled at 0.42 degrees Celsius higher than the boiling point of pure benzene. Calculate the molecular mass of substance. Molar elevation constant of benzene is 2.67 Kelvin kg per mole. So a solution of 2.5 gram of non-volatile solid. This represents the mass of solid. So mass of solid कितना हो गया? Small w 2.5 gram. Dissolved in 100 gram of benzene. That is mass of solvent capital W हो गया 100 gram. Kb की वैल्यू हमें दिया हुआ है 2.67. ठीक है. हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, मतलब स्मॉल m की वैल्यू हमें निकालना है. ठीक है. डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि इज बॉइल्ड एट 0.42 डिग्री सेल्सियस हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन. सो व्हाटएवर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज 0.42. तो डेल्टा टीबी हो गया 0.42. ठीक है. सो मोलर मास फॉर्मूले में रख दीजिए. सो 1000 into Kb की जगह पे 2.67, small w mass of solute 2.5 divided by delta TB 0.42 into mass of solvent that is 100. इसको सॉल्व किया तो 158.9. So thus the molecular mass of substance is 158.9 ग्राम पर मोल. ठीक है. सो इस फॉर्मूले देखिए 1000 तो कांस्टेंट है, कन्वर्जन फैक्टर है, Kb मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और मोलर मास. तो 1 2 3 4 5, आउट ऑफ 5 any 4 will be given, we have to find any one. तो एक इक्वेशन से एक अननोन निकाल सकते हैं, तो कोई एक वैल्यू हमें यहाँ पे निकालना है, बाकी आपको यहाँ में दिया रहेगा.
चलिए सेकेंड एग्जांपल, द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज 0.56 केल्विन kg per mole. Calculate the boiling point of solution made by dissolving 6 gram of urea in 200 gram of water. So kb की वैल्यू हमें दिया हुआ है 0.56, 6 ग्राम ऑफ यूरिया, यहाँ में आपको नाम दिया है कौन सा सॉलिड को डिजोल्व किया है. सो मास ऑफ सॉलिड स्मॉल w कितना हो गया 6 ग्राम, कितने में डिजोल्व किया 200 ग्राम. सो मास ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल W 200 ग्राम. मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2, मॉलिक्यूलर मास रख के निकालेंगे तो कितना आएगा 60 ग्राम पर मोल. ठीक है, सो यूरिया इज NH2CO NH2, नाइट्रोजन हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, तो ये हो गया 60 ग्राम पर मोल. अब फॉर्मूले में रख दिए, देखिए केवी दिया है, स्मॉल w दिया है, कैपिटल W दिया है, स्मॉल m दिया है, मिसिंग क्या है डेल्टा टीवी. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकाला, फॉर्मूले में रख दिया 0.28. अब हमें यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, नॉट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. तो हमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है. सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, प्योर वाटर प्लस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. सो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन में प्लस 0.28, दोनों को ऐड कर दिया 373.28 केल्विन. नो डाउट यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में भी निकाल सकते हैं, तो डिग्री सेल्सियस में निकालेंगे तो 273 माइनस कर दिया मतलब 100.28 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, सो यहाँ पे याद देना है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो पहले हमें फॉर्मूला से डेल्टा टीवी निकालना पड़ेगा, फिर उस डेल्टा टीवी पे प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को प्लस करना है. Third numerical, the boiling point of water at 750 mm mercury is 99.63 degree Celsius. How much sucrose is to be added in 500 gram of water such that it boils at 100 degree Celsius? kV की वैल्यू गिवन है 0.52. अब हमें यहाँ निकालना है हाउ मच सुक्रोज, कितना चीनी, सुक्रोज केन शुगर चीनी डालें, दैट इज मास ऑफ सॉलिड इज मिसिंग टू बी कैलकुलेटेड. मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है 500 ग्राम. ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज दैट इज केन शुगर, तो किस शुगर का फॉर्मूला C12H22O11, 342 ग्राम पर मोल. केवी की वैल्यू 0.52. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो पहले कितना था 99.63 डिग्री सेल्सियस, बढ़ के कितना हो गया 100 डिग्री सेल्सियस. तो 100 माइनस 99.63 दैट इज 0.37, ये हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी. We know that formula delta TB equal to 1000 kV small w by small m into capital W. हमें यहाँ से क्या निकालना है small w निकालना है, mass of solid. So delta TB 0.37, small m that is molecular mass sugar 342, capital W mass of solvent that is 500 divided by kb 0.52 into 1000. इसको सॉल्व किया, दिया है 121.67. So thus the mass of sucrose to be added 121.67 gram. ठीक है, fourth category, calculate the molar elevation constant of water if molar enthalpy of evaporation of water at 373 Kelvin is 40.585 kg per mole. So delta H evaporation दिया है, ये फॉर्मूला था पीछे पड़ा था kb equal to RTB square by 1000 LV. बस LV को हमें क्या करना पड़ेगा जूल पर ग्राम में निकालना पड़ेगा, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई किया, 18 से डिवाइड किया, तो ये मिल गया जूल पर ग्राम, एंड देन फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर दिया. ठीक है, तो यहाँ से आ गया सो डेल्टा एच बी मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर ग्राम ऑफ वाटर. तो ये आपको यहाँ दिया, देखिए किलो जूल में दिया, इसलिए पहले किलो मतलब 1000 जूल और पर मोल, तो मोल मतलब H2O का फॉर्मूला, वाटर का फॉर्मूला H2 मतलब 18 ग्राम, डिवाइड किया तो ये हमको मिल गया जूल पर ग्राम, और इस वैल्यू को यहाँ में रख दिया. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 स्क्वायर, आर की वैल्यू 8.314 रख के सॉल्व किया, दिया गया 0.52 केल्विन kg पर मोल. ठीक है, चलिए कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिया है, जो अभी फॉर्मूला पीछे पड़ा है उसके आधार पे जस्ट ट्राई करिए, सॉल्व करिए. आंसर यहाँ पे गिवन है, आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप हमें पर्सनल व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं कि आंसर नहीं आ रहा है या क्या मैंने सॉल्व किया है, कैलकुलेशन सही है या गलत है. ठीक है, तो ये था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. तो 2 पॉइंट यहाँ पे कि किसी भी प्योर सॉलिड में कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड डालते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, क्यों, क्योंकि वेपर प्रेशर कम होता है. ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट वीडियो में सेम यही फॉर्मूला आएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का. ठीक है, तो जहाँ में V पड़ा था वहाँ में F आएगा. तो इसको ट्राई करिए, सॉल्व करिए,
नेक्स्ट वीडियो में टेम्परेचर इन फ्रीजिंग पॉइंट। थैंक यू।